عید الاضحیٰ میں 4 روز باقی، شہریوں کی بڑی تعداد قربانی کا جانور خریدنے منڈی پہنچ گئی، تو وہیں جانوروں کی قیمتوں پر بیوپاریوں اور خریداروں کے مابین بحث و تکرار کا سلسلہ جاری ہے۔ مویشی منڈی میں گہما گہمی عروج پر ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے آن آباد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں، جہاں بات کی جائے جانوروں کے حوالے سے تو جو بڑا جانور ہے اس کی خریداری کے لیے بھی کافی شہری یہاں موجود ہیں۔ کون سا جانور اسپیسیفکلی آپ خریدنے آئے تھے کہ ابھی تک کامیاب ہو پائے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن ہوپفلی ہو جائیں گے، بٹ پرائسز آر ہائر دین ایکسپیکٹیشن، ٹچنگ 200,000. نارمل animals are more than 200,000. That is too high. پچھلے سال کی نسبت اس سال اگر ریٹ کی بات کی جائے، پچھلے سال کتنے کا مل گیا تھا اور ابھی کیا سوچ کے آئے تھے، اب کیا مل رہا ہے یہاں پر؟ ابھی سوچ کر آئے تھے کہ 130,000 تک ہو جائے گا، لیکن یہ ابھی 200,000 کے قریب جا رہا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم تو 100,000 میں ہو گیا تھا، ہمارا ریزنیبل تھا، 1,000 میں ہو گیا تھا۔ یہاں پر شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو ریٹ ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے، تقریباً جو 1 لاکھ کا جانور پہلے مل گیا تھا وہ اب 2 لاکھ سے کم کا نہیں۔ میرا بیوپاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا کتنے جانور ابھی تک بیچ پائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو گاہک ہیں اس کا جو اس دفعہ کا آنے جانے کا گاہکوں کا جو آپ کا پرسنٹیج ہے کیا ہے وہ؟ یہ بھائی جان ہم بیاٹی سے آئے ہیں، 20 جانور لے کے آئے تھے، تو ادھر شہری جو آتے ہیں دیکھ کے ریٹ لگاتے نہیں ہیں، کم داموں میں دیتے ہیں۔ ادھر 3,000 روپے ایک بچڑے کا کرایہ ہے، ایک بچڑے کا 20 جانور ہیں، 60,000 روپے ادھر کرایہ ہے، توڑی ہے، ونڈے ہیں، خرچے ہیں، آپ کا خرچہ ہے، 3 نوکر رکھے ہوئے ہیں ان کا خرچہ ہے۔ ابھی تک ہمارے 3 جانور بکے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر بیوپاریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو یہاں پر جانور کو لانے کا خرچہ، یہاں پر اسے چارہ کھلانے کا خرچہ، باقی نوکر چاکر کا خرچہ، وہ بھی ایکسپنس کافی زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود اب تک ان کے 3 جانور ہی صرف بک پائے ہیں۔ جو شہری ہیں ان کی قوت خرید میں بھی اب جو جانور ہے، بڑا جانور ہے اسپیسیفکلی، اس کا جو ریٹ ہے وہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر جا چکا ہے۔ جی آن عباس تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ شہری اولیا میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری، شہریوں نے چھریاں ٹوکے تیز کرنا شروع کر دیے، سانگر کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے۔ بڑا ٹوکا 1200، چھری 500 اور لکڑی کی مڈھی 400 سے لے کر 1000 تک فروخت ہونے لگی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں گے رانا بلال کی یہ رپورٹ۔ عید قربان میں 4 روز باقی رہ گئے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہری چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے سانگر کی دکانوں پر پہنچ گئے۔ دکاندار نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال کی نسبت ٹوکا تیز کرنے کے 50 اور چھری کے 30 روپے بڑھائے ہیں۔ بڑا ٹوکا 1200، چھری 500 اور لکڑی کی منڈیاں 400 سے لے کر 1000 تک فروخت کر رہے ہیں۔ ہم نے وہ 10-20 روپے ازار کے پیچھے بڑھائے ہیں، لیکن گاہک جو ہے بہت بحث کرتا ہے، وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز، سوئی گیس بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، دکانوں کے کرائے اتنے مہنگے ہیں، لیکن گاہک بہت بحث کرتا ہے۔ بحث کرنے کے بعد پھر وہ اپنا وہ کام کرواتا ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال چھریاں، ٹوکے اور مڈھیاں کافی مہنگی ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مشکل درپیش ہے۔ میں چھری تیز کروانے کے لیے دکان پہ آیا تھا، لیکن جب ریٹ سنے تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے کہا یار پچھلے سال ریٹ کیا تھا، اب حالات کیا کرتی ہے، حکومت سے چاہیے کہ غریبوں کا یار کچھ خیال کرے یار۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ رحیمیہ خان کے شہریوں نے بڑی عید پر بڑی دعوتوں کا پلان بنا لیا، باربیکیو کی تیاریوں کے لیے انگیٹھیوں اور سیخوں کی خریداری شروع کر دی۔ پرانا ڈاڈا خانہ بازار کی رونقیں بحال ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کے دوسرے اور تیسرے روز دوستوں کے ہمراہ خوب انجوائے کریں گے۔ عامر بھٹی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ رحیمیہ خان کے باسیوں نے بڑی عید پر بڑے خوابوں کا پلان کر لیا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ باربیکیو کی دعوتیں اڑانے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی۔ شہری دھڑا دھڑ انگیٹھیوں اور سیخیں خریدنے پرانا ڈاکخانہ بازار پہنچ گئے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ عید قربان سے قبل انگیٹھیوں اور سیخوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ فی سیخ 50 روپے سے 200 روپے، جبکہ انگیٹھی 500 سے 2500 روپے تک دستیاب ہے۔ بقرہ عید کے موقع پر جب ہم یہاں ایک اڈا لگاتے ہیں تو عید کی وجہ سے کچھ مانگ بڑھ جاتی ہے، جس میں ہماری یہ سیخیں ہوتی ہیں، کبابوں کے لیے انگیٹھیاں ہوتی ہیں اور بغدے ہوتے ہیں اور قیمے والی مشین ہوتی ہے۔ ہمارے کسٹمر جو آتے ہیں پھر ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سیخیں ہیں، یہ 50 روپے کی ایک ہے، اگر درجن لیں گے تو پھر یہ 500 روپے کی درجن ہے۔ یہ جو ہے یہ کباب والی سیخ ہے، اس پر صرف کباب لگتے ہیں۔ دوست باہر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بناتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں۔
शहरियों का कहना था कि बारबेक्यू और दावतों के बगैर ईद की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं, इसीलिए एक हफ्ता कबल ही दावतों की तैयारी शुरू कर दी। ईद के तीसरे दिन दूसरे दिन हम अपने दोस्त अहबाब के साथ इकट्ठे होकर बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं। इकट्ठे होकर हम एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर जो इंजॉय का मजा आता है तिक्का बोटी मलाई बोटी का, उसका अलग ही मजा है। शहरियों का मजीद कहना था कि अंगीठियों और सीखों से तिक्का बोटी, मलाई बोटी, कबाब और दीगर पसंदीदा डिशेस तैयार की जाती हैं, जिससे ईद कुर्बान का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। ईद में चंद रोज बाकी, महंगाई के बाद शहरी खरीदारी न कर सके। खानपुर के बाजार सुनसान पड़ गए, ताजिर और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सुहेल से। जी बिल्कुल, ईद में चंद रोज़ बाकी हैं और खानपुर शहर के बाज़ार जो हैं ये सुनसान हुए पड़े हैं। यहाँ पर शहरियों की तरफ से कोई ख़रीदारी जो है वो नहीं हो रही। दुकानदार भी जो है परेशान हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे, ईद करीब है, चंद रोज़ बाकी हैं और कोई ख़रीदारी नहीं हो रही, क्या वजह है, क्या कहेंगे? कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से ख़रीदारी नहीं हो रही। हम ताजरों को पूरा साल इंतज़ार होता है ईद का कि ईद आएगी और हमारी ये सेल अच्छी होगी, दुकानदारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन रेट्स इतने बढ़ गए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंटें इतनी बढ़ गई हैं, यानी कि जो चीज़ पहले 300 की थी वो 500 रुपये की हो गई है और ख़रीदार परेशान है कि ये इतनी महंगी कैसे हो गई है। यानी कि उसको इतने टैक्स लगा दिए हुकूमत ने, साल में 2-2, 3-3 दफ़ा तो टैक्स लगाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट इतने बढ़ जाते हैं और ख़रीद नहीं पाते। जो कस्टमर आते हैं पूछ के चले जाते हैं, वो तसल्ली नहीं होती कि इतने रेट बढ़ गए हैं, पिछली दफ़ा हम इतने की लेके गए हैं, लेकिन इधर कोई रोकथाम नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है किसी चीज़ पे। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो नहीं ख़रीद पा रहे हैं और बाकी चीज़ें क्या लेंगे, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। क्या कहेंगे आप, इतनी महंगाई है और परेशानी का भी सामना है, हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? हमारा मुतालबा है कि जैसे त्यौहार आते हैं ईद, तो उस पर रिलीफ दिया जाए काफ़ी चीज़ों पे, ताकि हर अमीर गरीब ये ज़रूरत की चीज़ें तो कम से कम ले सकें। लोग बच्चों के कपड़े नहीं ले पा रहे, ज़रूरत की चीज़ें नहीं ले पा रहे, कि वो दूसरी चीज़ें क्या लेंगे। ताजिर भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है, सब परेशान है महंगाई की वजह से। जी बिल्कुल, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है, ख़रीदार भी परेशान है, ताजर भी परेशान है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनको रिलीफ दिया जाए, चीज़ें जो हैं इनकी रिलीफ दिया जाए। आमिर सुहेल आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, खुशाब में महंगाई के कारीवार, सब्सिडी खत्म होते ही 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए का हो गया। मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए, हुकूमत से आटा सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। जुल्करनैन हैदर की रिपोर्ट में देखिए। शाम में महंगाई की एक और लहर, सब्सिडी खत्म होते ही 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए का हो गया। मजदूर 2 वक्त की रोटी को तरस गए। शहरियों का कहना था कि यही आटा हुकूमत ने पहले मुफ्त दिया, अब इतने रेट क्यों हैं? सर जी, आटे का गट्टू 1300 का हो गया, 15 रुपए की रोटी है। बाजार लेने जाते हैं तो उधर पैसे नहीं पूरे होते। हमारी 700-800 रुपये दिहाड़ी है, तो घर आटा लेके जाए 3-4 दिन चलता है सिर्फ 10 किलो का आटा। हम तो मजदूर बंदे, हम कहाँ से आटा पूरा करें, कहाँ से रोटी पूरी करें? हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम पे रहम किया जाए, हमारे लिए कुछ शफकत की जाए, इन रेटों को कम किया जाए। मजदूरों का कहना था कि 800 से ज्यादा दिहाड़ी नहीं बनती, आटे का थैला खरीदें या दीगर जरूरियात जिंदगी पूरी करें। तंदूर पर रोटी की कीमत भी 15 रुपए हो चुकी है। घर के 5 अफराद हैं, उनका पेट कैसे पालें? खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। भाई 1300 का गट्टू हो गए, 400-500 रुपया दिहाड़ दी साडी आमदनी होना, असां केॾो ॿारनि दा आटा पूरा करां। मुतालबा है भाई कोई साडे ते रहम कीता वञे, कोई हर शइ महंगाई तले आ वञे, तो ईअं त साडा कम बहु ख़राब होया पिया। भैयान 15 रुपए की रोटी है, भैयान 10 किलो वाला आटा 1300 रुपए का है। या अल्लाह, हम क्या करें? हम बड़े मजबूर है, गरीब आदमी है भाई, हमारा गुजारा नहीं होता। बराए मेहरबानी हम पे रहम कीजिए। महंगाई से तंग मजदूर तबके से हुकूमत से आटा सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। अब आपको बताएं, पंजाब में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में तरक्कियां। एडिशनल आईजी पीएचपी की हिदायत पर महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इनेकाद कर दिया गया है। 93 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एडिशनल आईजी पंजाब की तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। आपको बताएं, मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में तरक्कियां हो चुकी हैं। एडिशनल आईजी पीएचपी की हिदायत पर महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इनेकाद कर दिया गया, जबकि 93 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने जिला राजनपुर के कस्बे फाजिलपुर का दौरा किया। फाजिलपुर के मुजाफात में सैलाब से मुतासरा 250 से ज्यादा अफराद में ईद पैकेज राशन तकसीम किया।
वाइस चांसलर का कहना था कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर फ्लड रिलीफ सेल गवर्नर पंजाब और वाइस चांसलर मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की हिदायत पर कायम किया गया है। इस सेल के तहत अब तक राजनपुर, रहीम यार खान के मुतासरा इलाकों में 3 करोड़ से ज़ायद का इमदादी सामान तकसीम किया जा चुका है। ईद के मौका पर जिला राजनपुर और जिला डेरा गाजी खान में बैक वक्त 2 मिलियन मालियत का इमदादी पैकेज तकसीम किया गया है। सैलाब मुतासरीन में अद्वियात भी पहुंचाई जा रही हैं। अब आपको बताएं, जतोई के नवाही इलाके कोटला रहम अली शाह में मौजूद मस्जिद सकीनतुस सुगरा के पाकिस्तान में चर्चे। मस्जिद को 2005 में ज़लज़ला प्रूफ बनाया गया है। मस्जिद में 4000 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इब्रार राना से। जी आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, हम इस वक्त जतोई के नवाही इलाका कोटला रहम अली शाह मस्जिद सकीनतुस सुगरा में मौजूद हैं। आपको बताता चलें कि मस्जिद सकीनतुस सुगरा है जो 2005 के अंदर इसका काम का आगाज़ हुआ था। इस मस्जिद को बनाना शुरू किया गया था और जो है लगभग है 2007 के अंदर है जो इसकी तामीर का काम मुकम्मल हुआ था। और इसको तुर्क इंजीनियर्स ने इसके अंदर जो जितना भी इसके अंदर काम किया गया है, तुर्क इंजीनियर्स और तुर्क आर्किटेक्चर्स ने इसके अंदर काम किया गया है और ये ज़लज़ला प्रूफ बनाई गई है। और इसके अंदर है जो लगभग है 4000 के करीब ही हैं, जो है 4000 के करीब है नमाजी एट अ टाइम, एक टाइम के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। मजीद यहाँ के खिदमत गुजार हैं, उनसे जानते हैं कि इस मस्जिद की तामीर में कितना टाइम लगा और किस तरह से ये मस्जिद बनी है और कितने यहाँ पर तालिब इल्म हैं जो ज़ेर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बताइएगा इस हवाले से। ये 2005 में मस्जिद का आगाज़ हुआ था और 2007 में मुकम्मल हो गई थी। ये नक्शा भी तुर्की का है, कारीगर इंजीनियर आर्किटेक्टर ये भी तुर्क थे। सारा काम तुर्की कारीगरों ने माशाल्लाह किया है। ये मस्जिद माशाल्लाह तकरीबन 4000 नमाजियों की गुंजाइश है। ज़लज़ला पारूफ बनाई गई है। जैसे कि आप सुनते हैं जनूबी एशिया की खूबसूरत तरीन मस्जिद है माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान भर से लोग यहाँ मस्जिद को देखने आते हैं। कितने तालिब इल्म एट अ टाइम यहाँ पर जो ज़ेर तालीम है, उनके खाने पीने के इंतजाम कौन करते हैं और इस मस्जिद के नाम जो है सकीनतुस सुगरा, उस हवाले से भी इसकी तारीफ बताइएगा। जी ये डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी साहब, उनकी वालदा और फुफ्फो के नाम पे उन्होंने मस्जिद का नाम सकीनतुस सुगरा मंसूब किया है। अल्लाह पाक उनकी इस कागज़ को कबूल फरमाए। यहाँ दीनी दुनियावी दोनों तालीमें दी जाती हैं। आलमे का कोर्स भी मुकम्मल किया जाता है। उसके साथ स्कूल की तालीम भी FSC तक दी जाती है और कुरान मजीद हिफ्ज़ नाज़रा कराया जाता है। उसके साथ भी स्कूल की FSC तक तालीम दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का माशाल्लाह मेरिट मैं बताता चलूँ, 2019 में एक लड़के ने मेडिकल में एंट्री टेस्ट पास किया, अभी वो डॉक्टर बन रहा है। ये हमारे शाह साहब जो खुद भी डॉक्टर हैं, उनका ये ख्वाब है। वो कहते हैं कि हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ हर तालिब इल्म किसी शोबे में जाए, बड़ा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये जो मुल्क और कौम को तरक्की की तरफ ले जाए। जी जैसा कि आपने खिदमत गुजार की ज़ुबानी सुना है कि उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है 250 के करीब यानी कि 250 के करीब है जो तालिब इल्म ज़ेर तालीम है और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी है जो यहाँ की मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से, यानी कि डॉक्टर इस्माइल शाह जो अमेरिका में मुकीम है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो खुद करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक तालिब इल्म भी मौजूद है, मस्जिद उनसे जान लेते हैं कि वो यहाँ पर ज़ेर तालीम है, उनको यहाँ पर क्या सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से 6 साल से पढ़ रहे हैं और बेहतरीन माशाल्लाह से तालीम का आगाज़ है और मैं कुरान मजीद भी यहीं पर पढ़ा हूँ और अब आलिम का कोर्स कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी मैट्रिक कामयाब हो गई है और आलिम का कोर्स मेरा चल रहा है। जी जैसा कि आपने तालिब इल्म की ज़ुबानी भी सुना है कि उनका ये कहना है कि उन्होंने हिफ्ज़ भी यहाँ से किया है और उसके साथ साथ जो आलिम का कोर्स भी कर रहे हैं और उनका ये भी मज़ीद कहना है कि यहाँ पर दीनी दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है और यहाँ पर तमाम सहूलियात उसके साथ साथ प्रोवाइड भी किया जाता है और पूरे मुल्क के पाकिस्तान से यहाँ पर सियाह इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और ये जनूबी पंजाब की सबसे खूबसूरत मस्जिद है और इसके पूरे मुल्क के पाकिस्तान और दुनिया भर में इस मस्जिद के खूबसूरती के चर्चे हैं और इसको तुर्क इंजीनियर से एक शाकार खूबसूरत। बहुत शुक्रिया इब्रार राना। आगे बढ़े और आपको बताएं, सादिकाबाद में जामिया मस्जिद नूर का सब्ज गुंबद और फलक को छूता मीनार फने तामीर का शाहकार। मस्जिद की ताज़ीन व आराइश सऊदी शहजादों ने खसूसी दिलचस्पी ली। मस्जिद का इफ्तिताह सऊदी शहजादे सैयद शरीफ फवाद अलवी ने किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे मलिक जावेद अनवर से।
जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ सादिकाबाद की मस्जिद नूर में। मस्जिद नूर का शुमार जो है वो खूबसूरत मसाजिदों में जो है वो शामिल होता है। इस वक्त जो है मस्जिद के मुतवल्ली भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो मस्जिद तामीर की गई है, इसकी क्या ख़ास वजह है कि शहरी काफ़ी तादाद में जो है वो छुट्टियों के दिनों में या ईद जैसे त्यौहार के दिनों में यहाँ पर आते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि आपको इस मस्जिद के बारे में पहले भी इंटरव्यू काफ़ी हो चुके हैं, ये मस्जिद का जो संग बुनियाद हमारे सैयद अबुल हसन मोहम्मद यूसुफ अमजद कादरी फाजली ने रखा था, वो आशिक़ रसूल भी थे। उन्होंने इस मस्जिद को मस्जिद नबी के तर्ज के ऊपर बनाया। दूर दराज से जो लोग आते हैं वो दूर से यही देखते हैं कि हम मस्जिद नबी के अंदर घूम रहे हैं। इसका जो शाहकार और इसकी जो बनावट है वो मस्जिद नबी की तर्ज के ऊपर है। ईद के ऊपर और बाकी त्यौहारों के ऊपर यहाँ पे काफ़ी तादाद के अंदर लोग जोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने और इसकी ज़ियारत करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और यहाँ पर इस मस्जिद को जो बनाने वाले हैं उनका भी अल्लाह पाक ने बहुत ज़हन और मदीना पाक से तशरीफ़ लेकर आए थे और इस मस्जिद को बनाने में उन्होंने काफ़ी मदद करार दी। जी बिल्कुल, इसकी जो है दोनों साथ जो है वो मस्जिद नबवी से जो है वो मिलती है। इसमें जो है शहरी भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस मस्जिद के हवाले? जी बिल्कुल, जब हम यहाँ आए हैं तो हमें ऐसे ही लगा कि जैसे हम हजूर के मदीना में पहुँच गए हैं और हमें देखकर इंतहाई दिल को मसरत और खुशी हुई कि ये सेम टू सेम इसका नक्शा जो है वो मस्जिद नबवी जैसा है। स्पेशली इसका दरवाज़ा वो सेम मस्जिद नबवी की तरह है और स्पेशली ये गुंबद और बाकी इसकी तज़ीन व आराइश इतनी दिल फरेब और खूबसूरत है कि दिल करता है कि बंदा पाँचों की पाँचों नमाजें किसी भी तरीके से यहाँ इस मस्जिद में पढ़े। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मस्जिद की चारों साइड की दीवारें जो हैं वो कुरान पाक की आयतें और खूबसूरत जो है वो फूलों के साथ जो है वो बनाई गई है। इस फानूस भी जो है बहुत जो है खूबसूरत यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। शहरियों का यही कहना कि हम यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इस मस्जिद की ख़ास वजह यह है कि मस्जिद का इंटर होने वाला मेन दरवाजे जो हैं वो मस्जिद नबवी की तर्ज पर हैं। हमें मलिक जावेद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जतोई के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। हम ना दोस्त आए हुए हैं इधर एंजॉय करने के लिए। आज हमारी पिकनिक भी है। लोड शेडिंग की वजह से हम ना इधर आए हुए हैं, स्विमिंग पूल पर एंजॉय करने हुए। नुमान स्विमिंग पूल है। इधर हमारे जतोई के जितने भी लोग हैं गर्मी से बेहाल है, इधर आएँ एंजॉय करें। ये गर्मी का आखिरी तोड़ यही है अब, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी है कि बहुत ज़्यादा। यही एक आवाम को तफरीह का मौका मिल रहा है। जो बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सेहू की ज़ेर सदारत इजलास कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि पंजाब में फसल का काफ़ी बेहतरीन रद्दअमल सामने आया है। महकमा ज़राअत के तमाम शोबे कपास की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील, वीसी ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स शब्बीर अहमद खान, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, डीजी पेस्ट वार्निंग राना फकीर समेत मुख्तलिफ अजला के ज़राअत तोसी अफसरान और दीगर शरीक हुए। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि पंजाब में फसल की सूरत काफ़ी बेहतर है। महकमा ज़राअत कपास की देखभाल के लिए मुतहर्रिक है। आज हमने पंजाब में कपास की फसल की सूरत हाल की एक बड़ी तफसीली मीटिंग ली है। इस वक्त पंजाब में अल्लाह के फजल करम से कपास की सूरत हाल, फसल की जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर है। उसका हर लिहाज से बहुत प्रोफेशनली मैनेज किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उसके तमाम विंग जो है इस वक्त इंतहाई मेहनत के साथ कपास की फसल की फील्ड टू फील्ड, विलेज टू विलेज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि कपास की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात भी इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत के साथ मसरूफ हैं। ओवरऑल डिपार्टमेंट पूरा आप जैसे देख रहे हैं, ना कोई वीकेंड है, ना इतवार है, ना हफ्ता है, और पूरी जो फील्ड फार्मेशंस हैं वो वहाँ हैं। अकेडमिया भी साथ लगी हुई है। इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो बड़ी एनर्जी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जी मौसम भी थोड़ा सा फेवर करे तो कॉटन के टारगेट से अचीव कर पाए। सेक्रेटरी ज़राअत ने फील्ड फार्मेशंस को फसल की मैनेजमेंट और जर रसा कीड़ों के इंसदाद के लिए मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ अली रियाज, मुल्तान।
म्यूनिसिपल स्टेडियम खानेवाल में खानेवाल और गोजरा बास्केटबॉल गर्ल्स टीमों के माबैन मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। मैच में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और मोहम्मद हफीज की खुसूसी शिरकत। वहां पर मौजूद मेहमान खुसूसी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाएं। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने आके देखा है कि इतनी सेहतमंदाना जो है ये एक्टिविटी है कि जो यहाँ पर की जा रही है, और खानेवाल जैसे कि वो छोटा शहर है और उसमें इतना ये जो गेम का मेला सजा दिया है, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो स्पोर्ट्स के जो अफसरान हैं उन्होंने ये इतना बेहतरीन किस्म का जो है ना ये इवेंट जो है यहाँ पर सजाया है। मेरा पैगाम यही है कि ये पैगाम सिहत है दोनों का, क्योंकि एक आउट ऑफ 2 डिवीज़न है, फैसलाबाद से टीम गोजरा से आई है और इधर मुल्तान डिवीज़न से खानेवाल की टीम है। मैंने देख के इनके जो सेहतमंदाना सरगर्मी में इन्होंने बच्चियों और बच्चों ने शिरकत की है, ये एक बेहतरीन इक़दाम है और मैं मुबशर साहब को मुबारकबाद दूंगा। ख़ुसूसन ये जो इन्होंने गर्ल्स का कैंप लगाया हुआ है जो कि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। यंग्स 5 बास्केटबॉल स्पोर्ट्स लीग जो है वो गोजरा की टीम्स और खानेवाल की टीम के दौरान हो रही है। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं पाकिस्तान बास्केटबॉल के खालिद बशीर साहब, उनकी छतरी के नीचे बास्केटबॉल की प्रमोशन के सिलसिले में ये जो एक इवेंट होने जा रहा है, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये बच्चियाँ और बच्चे पाकिस्तान। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।